ਬਿਲਾਵਲ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਜੀ ਜੁਗਤ ਬਸ ਪ੍ਰਭ ਕਹਿ, ਜੋ ਕਹਿ ਸੋ ਕਰਨਾ। ਭਏ ਪ੍ਰਸੰਨ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ, ਭਉ ਕਿਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਦੁਖ ਨਾ ਲਾਗੈ ਕਦੇ ਤੁਧ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਚਿਤਾਰੇ। ਜਮ ਕੰਕਰ ਨੇੜ ਨਾ ਆਵਈ, ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ। ਰਹਾਉ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਤਿਸ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਰ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੀ, ਸਾਚਾ ਮਨ ਜੋਰ। ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਤਿਸ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਰ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ, ਸਾਚਾ ਮਨ ਜੋਰ। ਚਬਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪ ਸਭ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ, ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ। ਆਓ ਗੁਰਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਸਭ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਜੀ, ਆਖਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼ਬਦ ਬਿਲਾਵਲ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਰਹਾਉ ਦੇ ਜੋ ਬੰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੁਖ ਨਾ ਲਾਗੈ ਕਦੇ ਤੁਧ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਚਿਤਾਰੇ। ਜਮ ਕੰਕਰ ਨੇੜ ਨਾ ਆਵਈ, ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ। ਰਹਾਉ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਜੀਵ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਮਤਲਬ ਅਰਾਧਿਆ ਕਰ। ਕਦੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਤ ਚੋਂ ਕਦੇ ਵਿਸਾਰੀ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਯਕੀਨ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਕਰ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਜਮ ਕੰਕਰ, ਭਾਵ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਮ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਮਦੂਤ ਚੁੰਬੜ ਗਿਆ, ਜਮ ਕੰਕਰ, ਜਮਦੂਤ। ਪਰ ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਲ ਤੇ ਕੋਈ ਜਮਦੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ। ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਜਮ ਕੰਕਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਵਿਕਾਰੀ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ? ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ, ਸ਼ਕਤੀ ਕਲਾ ਤਾਕਤ ਸਦਕਾ। ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਸ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਦਾਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਫਿਰ ਜਮ ਕੰਕਰ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਮਤਲਬ ਜਮਦੂਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ
अनेकां किस्मां दे जमदूत ने जिहड़े ਉਹ ਚੁੰਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਕਹਿ ਲੋ, ਆਸਰਾ ਕਹਿ ਲੋ, ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਯਕੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲੋ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲੋ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਾਖੀ ਹੈ। ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਟੂਕ ਲੈਣੀ ਆ, ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਲੈਣਾ। ਕਦੇ ਵਕਤ ਸੀ ਪੱਟੀ ਦਾ ਸੇਠ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਦੁਨੀ ਚੰਦ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋ। ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਉਸਦੇ ਕੁਝ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, 5-7 ਕਹਿ ਲਵੋ। ਪਹਿਲੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਨੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਜਿਉਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਠਰਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਆਸਰੇ ਜਿਉਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤੀ ਖਾਂਦੀ ਆ। ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸੇਮ ਗੱਲ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਇਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਰੋ ਬਾਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, 5 ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ 7 ਨੇ, 6 ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਵਾਬ, ਤੇ ਲਾਸਟ ਤੇ 7ਵੀਂ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਦੀ ਆ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਆਸਰਾ, ਭਰੋਸਾ, ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੀ ਆ। ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਨਮ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਜਿਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੋਇਆਗਾ, ਉਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਬੱਚੀ ਬੜੇ ਠਰਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਹੀ ਯਕੀਨ ਆ ਪਿਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੇਰਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਸ ਗੱਲ ਖਤਮ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ, ਯਕੀਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਇਹੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੇ ਘਰ ਵਾਪਰਦੀ ਆ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਾਪ ਹੈ ਹਰਨਾਕਸ਼, ਤੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬੜੇ ਠਰਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰ, ਮੈਂ ਹੀ ਆ ਤੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੇ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਉਸੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਜਿਉਂ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਇਹ ਜੀਵਨ ਖੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਇਹ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਮੇਰਾ ਆਸਰਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਆ। ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਵੇਲੇ ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤੋ ਪਾਇਆ, ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ RAM ਰਾਜੇ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤਰਾਇਆ, ਅਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਪਿੱਠ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿਓ ਮੁਖ ਲਾਇਆ। ਉੱਥੇ 2 ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦਾ ਤੇ ਨਾਮਦੇਵ ਦਾ। ਇਥੋਂ ਸਿੱਧ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਤਸੀਹੇ ਮਿਲ ਗਏ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ, ਥੋੜੇ ਨਹੀਂ।
इवें जिवें आप जी नूं पता नामदेव वर्गिਆਂ ਨੂੰ भी बड़े तसीहे मिले ने, पर इक्को ही आवाज़ सी भी साडा राखा, साडी मदद करन वाला, साडा भरोसा, साडा यकीन एक प्रभु परमात्मा ते है, उहदे तो बिना होर किते यकीन नहीं है। बस गल खत्म। इवें जिवें जो आपां हुण गुरबाणी अज दा शब्द रहाओ दा पढ़िया, इहदे विच भी यकीन दी गल कीती है, भरोसे दी भी। एक परमात्मा दा नाम जप ते ओ वाहिगुरू ते भरोसा रख, ओ परमात्मा ही तेरी जिंदगी नूं चला रहा। अंदर बैठा ना, ओ वाहिगुरू साडे शरीर नूं चला रहा है। इत्थे आपां इशारा की लेता भी जदों लास्ट वाली लड़की नूं पुछया गया भी तू किहदा दिता खानी आ, तां उहने जवाब दे दिता भी मैं तेरा दिता नहीं खांदी। जिहड़ियां 6 ने पहलां कहा ना भी असीं तेरा दिता खानियां, ते अगली ने 7वीं ने जवाब दे दिता भी तेरा दिता नहीं, मैं परमात्मा दा दिता खानी आ। ते हुण गल इत्थे भी जम कंकर जमदूत, हुण बाप अपनी धी लई जमदूत दा रूप धारण कर गया। चलो अगे आपां सुणदे हां, बड़े बारी ये कहानी तुसीं ढाडियां रागियां पासों श्रवण कीती होनी आ, कथावाचकां पासों सुनी होनी आ, आम जी कहानियां ये। पर आपां ये वेखना एक तां जमदूत कौन आ, नंबर 2 ते जिन्हां नूं परमात्मा ते यकीन हुंदा जमदूत उन्हां ते असर करदा जां नहीं करदा। जदों इस तरह दा आपां नक्शा बना के विचों वेखांगे ना, फिर सानूं समझ आ जानी आ भी गुरु साहब जी की कहना चाहुंदे ने। क्योंकि गुरबाणी आपां पढ़ रहे हैं, विचार रहे हैं, कहानी राहीं किसी साखी राहीं गल नूं समझना हुंदा। जानी कि आपां साखी नूं फार्मूला कह सकदे हां गुरबाणी नूं समझण दे लई। जदों हुण जवाब दे दित्ता ते बाप हुण जमदूत दा रूप धारण कर गया। इधरों आपां इशारा लैता सी भगत प्रहलाद दे बापू ने जमदूत दा रूप धारण कर लिया। हरनाक्ष ने जमदूत बन गया ना, कदे तत्ते थम नूं जफ्फी पा, कदे किवें कदे किवें कदे किवें, आखिरकार किन्ने तसीहे दित्ते ने, किन्ने एक नहीं। पर वो जमदूत दा रूप धारण वाला बाप अपने पुੱਤ नूं रब ते भरोसा रखण वाले नूं जित नहीं सकिया। इवें जिवें साडे संसार दे विच अज भी कुछ चलदा, ये नहीं है भी नहीं चलदा गा। चलो हुण जिहड़ी लास्ट वाली सी उहदा नाम सी रजनी, तुसीं आप सारे जाणदे हो। ते उहनूं कहा भी तूं किहदा दित्ता, ते उहने भी जवाब दित्ता तेरा दित्ता नहीं, मैं तां परमात्मा ते टेक रखण वाली आ, वाहिगुरू परमात्मा दा दित्ता ही खानी आ, ਉਹੀ ਦਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੱਲਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਰੇਕ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਜੰਤ ਉਪਾਇਆ, ਤਾਂ ਕਾ ਰਿਜ਼ਕ ਆਗੇ ਕਰ ਧਰਿਆ। ਬਾਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ ਜਮਦੂਤ ਦਾ ਰੂਪ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ ਆ ਇਹ ਆਪਾਂ ਵੇਖਣੀ ਆ भी ओ जो सुनिया उवें आ जां उदों उल्टा। देखो सुनिया की है, पहला आपां ओ नाल तय ला लो भी उस टाइम ते बाप ने फैसला किया भी इनू किसे पिंगले दे कोड़ी दे लड़ लाया जावे, वेख लांगे इनू परमात्मा खवाउंदा जां नहीं खवाउंदा। इनू कोड़ी बंदे दे ना नकम्मे बंदे दे लड़ लाया जावे। उत्थे जो रूप धारण कीता गा भी एक सड़क ते बैठा, राह दे विच बैठा, जिहदे तन ते कोड़ चलिया होया गा, बिल्कुल नकम्मा, उहदे नाल बीबी रजनी दा विआह कर दिता। आपां इह सुणदे हां। चलो उस तो बाद जो कहानी अगली आ भी बीबी अपने पति नूं टोकरी चक के जां किवें भी ला लो दरबार साहब पहुंच जांदी आ, ते दरबार साहब दे विच इशनान करन दे नाल उहदे पति दा जिहड़ा कोड़ आ ओह हट जांदा। इथों तक आपां सुणिया। ओह बेरी भी अज उत्थे जिहड़ी सरोवर दे कंढे ते ना 3 वेरियां ने, लाची वेरी, बाबा बुढ़ा जी वाली ते बीबी रजनी नाल जुड़ी हुई जिहड़ी कहानी आ ओह वेरी, दुख भंजनी वेरी जिहनूं आपां कह दिंदे आ। पर जिहड़ी असलीयत आ गई, गुरु साहब जी कहंदे भी ओह आ गई। जिहड़ा तां लोक
प्रचलित बोली आ वो तां इह आ भी आपां सुन ली, जिहड़ी गुरमत दे सीसे राहीं वेखणी आ वो गल आ गई आ भी उस टाइम ते बीबी ने कहा सी भी मैं तां परमात्मा दा दित्ता खानी आ ते परमात्मा ही मैनूं खवाउंदा है। ते जदों आपां अपनी धी वास्ते पति दी चोण करदे आ, बच्चे दी चोण करदे आ, तां उदों सब तो पहलां हर एक बाप हर एक मां ये वेखदी आ भी जिस लड़के दे मेरी बच्ची लड़ लाई जा रही है भी वो कम करदा कि नहीं करदा। आ गल देखी जांदी भी कम वाला जां नहीं कम वाला। कई बार धोखे नाल नकम्मिਆਂ नाल भी विआह हो जाते हैं, पर वेख्या सब तो पहला ये स्टैप जांदा भी कम वाला जां नहीं कम वाला। हुण जिहड़ा इत्थों दा दृष्टांत आ वो ये आ भी इहने अपनी धी दा विआह नकम्मे बंदे नाल कीता सी, कोड़ी नहीं नकम्मा, जिहड़ा कम नहीं सी करदा, जिहनूं कम करना पसंद नहीं सीगा। जो बंदे नूं कम करना नहीं पसंद ते उदों मैं वेखूंगा भी जिहड़ा बंदा खुद कम नहीं करदा भी हुण तैनूं परमात्मा दिंदा कि नहीं दिंदागा। जदों ने कम ही ना कीता तां तैनूं खवाऊ कित्थों, जदों घर दे विच लिआंदा कुछ ना ते फिर आपे भुखी मरेंगी ते मेरे कोले आवेंगी। जिहड़ा हवाला ना गुरु साहब नूं दित्तागा आ, पर उहनूं रूप असीं दूजा देता भी कोड़ वाला। चलो फिर अगे जाके जदों विआह हो गया ते ये बीबी बड़ी परमात्मा ते टेक रखण वाली आ, रब ते भरोसा रखण वाली आ। अपने पति नूं कहंदी भी जदों अपना विआह हो गया भी सब तो पहलां आपां दरबार साहिब जाना। वैसे हर एक सिख दा फर्ज हुंदागा भी जिहड़ा साडा केंद्री स्थान आ हरमंदर साहिब भी असीं जरूर नमस्तक होईए। जदों भी वक्त मिले दरबार साहिब धन श्री गुरु रामदास महाराज जी के दर्शन करिए, अरदास बेनती जो भी गुरबाणी कीर्तन है सेवा है जरूर करिए ते अपना दसवंध भी जरूर दईए। बड़े लोग ने ये नहीं करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, पर जो शरधा की सानू साडे गुरु ते होनी अति जरूरी आ। हुण जदों नकम्मे नाल विआह कर दिता उहनूं प्रेरित कीता, मेरे लिए तो मेरे वास्ते बहुत वड्डा तोहफा, मेरे बाप ने तैनूं पूरी दुनिया दे विचों विशेष चुन के ना उहनूं हौसला दिता, विशेष चुन के तेरे नाल मेरा विआह कीतागा। चल सब तो पहला घर वसाउण तो पहला ना आपां धन गुरु रामदास महाराज जी दे दर ते चले गए। जदों दोवें जणे दरबार साहिब चले गए ना ते उत्थे जाके हुण जिहड़ी कहानी दूजी आ भी वो कोड़ी ने देखे कां, काला कां सरोवर च वड़दा ते चिट्टा होके निकल जाता। हुण इह गल दा इत्थे जवाब दिओ, चलो अपनी गल चल पई भी अज तक किसी ने चिट्टा कां नहीं वेख्यागा। जे चिट्टे कां उदों पैदा होए सी फिर वो किधर गए अज? उन्हां दा कोई थोड़ा बहुता नमो निशान तो होना सी ना, पर नहीं गुरु साहब इस गल नूं नहीं मनदे, असीं मनदे आ। साडे सिख ने जिहड़ा भाईचारा गा वो मनदा भी हाँ इदां दी गल हैगी आ, पर जिहड़ी अपनी विचार आ गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी विचार आ ये दूजा पक्ष ये विखाउंदी है भी जिहड़ा वो नकम्मा बंदा सी ना, जदों वो दरबार साहिब आ गया अपने घर वाली दे नाल, जिन्हों कम करना पसंद ही नहीं सी भी मैं तां कम करना ही नहीं, नकम्मा जमा नकम्मा बिल्कुल। ते उत्थे जाके की वेख्या गुरु पातशाह ने पावन बाणी विच भी उचारण कीतागा, सतगुर सतवादी अमृतसर, अमृतसर भाव दरबार साहिब दे विच जित नहातै कौआ हंस हो है। अमृतसर सतगुर सतवादी जित नहातै कौआ, जिक्र जरूर कीता भी कां नहाता ते हंस बन गया, पर वो की सीगा कां कौन आ? साडी बिरती काली हुई पई है ना, बिरती जिहड़ी साडी काली हुई पई आ। दरबार साहिब धन श्री गुरु रामदास महाराज दे चरनां विच बैठ के काली बिरती दा इशनान सत संगत सरोवर विच गुरु ग्रंथ साहिब दी विचारधारा राही करवा के, अपने मन दा इशनान करवा के, मन दी काल खला के मन रूपी काला कां चिट्टा बन जांदा, उत्थों वापस आउण वेले चिट्टा बन के निकलदा। जिहड़ी विचार आ तां गुरु साहब ने आ दित्ती आ। अमृतसर
सतगुर सतवादी जित नहाता कौआ हंस हो है। पर असी की बनाता, असी कां काले सरोवर विच उतरदे दिखाते ते चिट्टे कां बाहर निकलदे दिखाते। भी आ काला कां विच वड़िया सी पानी च ते चिट्टा बन के बाहर निकल गया। हुण एक नंबर ते तां जाके गुरु साहब दे चरनां विच इहने अपणियां अखां नाल वेखिया, उत्थे जिन्ने लोक फिरदे ने एक भी नहीं विहला। जिन्ने फिरदे ने, कोई झाड़ू मारी जांदा, कोई बर्तन साफ करी जांदा, कोई सेवा करी जांदा, किते कोई सेवा करी जांदा। इहनूं एहसास होया ओ नकम्मिया, ओ कोड़िया, आपां कोड़ी किहनूं कहने हुण नकम्मे बंदे नूं। हुण ओ बाप ने ओदा शरीर ते कोड़ ਚੱਲਣ वाले व्यक्ति नाल नहीं अपनी धी विआही, नकम्मे ना विआहती, जिहड़े नूं आपां कोड़ी कह दिंदे आ भी जमा किसे काम दा नहीं, नकम्मा गा। भी हुण देखूं तैनूं परमात्मा दिंदा जां नहीं दिंदा। उत्थे जाके जिन्नियां नूं वेखिया सारे किरती नेगे, सब काम कर रहे नेगे। ते नंबर 2 ते गुरबाणी सुनी, किरत नूं मुख रख के गुरु साहब ने शब्द दी विचार कीती ते ओ विचार नूं अपनाया। ते जदों दरबार साहब तो वापस परतिया ना, अपनी पत्नी नाल दोवां जणियां ने मिल के धन गुरु रामदास महाराज, गुरु अर्जन साहब महाराज जी दे चरनां च बेनती कीती, अज तो बाद असी बिना कम तो जिंदगी नहीं गुजारांगे, तेरे ते भरोसा रख के सख्त मेहनत करांगे ते तेरे नाल जुड़ के अपनी सोहनी जिंदगी बतीत करांगे। आ बेनती आउंदियां ने कीती आ। पहलां गए, दुनिया दे लोग उत्थे वेखे सब किरती ने, ਉਹ नहीं वेखे भी कां वड़ गया सरोवर च चिट्टा बन के निकल गया, वो साडी मनौत आ, सानू पसंद ही कुछ आ ना। पर जे हुंदे तां सवाल आ भी अज वो कां चिट्टे किधर गए, पर ये कुछ नहीं सी। नंबर 2 ते जिथे संगतां दा आउण जाण होवे तां उत्थे कोई पंछी छेती छेती नहीं आउंदा, जे आउंदा दसो। नंबर 2 ते हुण इत्थे जाके पहला किरती बंदे देखे, फिर गुरु दी बाणी सुनी, जिहड़ी विचार हो रही आ वो किरत नूं संबोधन करके हो रही आ भी गुरु बरकतां नकम्मियां च नहीं पाउंदा, बेलणां च नहीं पाउंदा, किरतियां ते बरकतां पाउंदा गुरु। ते इहने प्रण कर लिया भी अज तो बाद मैं जिंदगी है जिहड़ी ना वो किरत नाल जुड़ के बतीत करांगा। ते आउण वाला वक्त किहो जिहा होया, अपनी बोली भी है ना, तरक्की दा इक्को ही रस्ता हैगा, सख्त मेहनत आरंभ कर दी। राजे दी धी सी, सेठ दी धी सी, दोबारा फिर अपने घर नूं बन के राणी बन गई, दोबारा फिर बन गई राणी। क्यों? क्योंकि परमात्मा ते टेक सी। पर बाप जमदूत ने कसर नहीं छड्डीगी। हुण इत्थे सिद्ध की हो गया, बाप जमदूत बन के अपनी धी ते वार करदा है। धी दा भरोसा गुरु ते है, गुरु ते भरोसा रखण वालियां ते जमदूत अपना वार कर नहीं सकेगा, जमदूत अपना वार कर नहीं सकेगा। इत्थे गुरु साहब ने भी सानू यही कहा भी एक मालक ते भरोसा यकीन रख, थोड़ा बहुता सबर रख, संतोख रख, इन्ना इमोशनल ना होया कर भी अपनी जिंदगी दे विच तू सब कासे तू अपना आपा दूर कर लवें। एक मालक ते टिक रख के जिंदगी चों फिर तेरी जिंदगी है जिहड़ी ना ये सोहनी बन सकती है। दोबारा फिर पर हाउ दीआं पंक्तियां पढ़िए, दुख ना लागै कदै तुद पार ब्रह्म नित ध्याई। रोज प्रभु परमात्मा नूं ध्याया कर ते दुख तेरे नेड़े भी नहीं आवेगा। फिर पातशाह जी कहंदे जम कंकर नेड़ ना आवई, जम कंकर जमदूत तेरे नेड़े नहीं आ सकदा। बाप वालों कीते हुए धी ते वार वो कुछ कर नहीं सकेगे। फिर की कहा, गुरसिख प्यारे, गुरु दे जिहड़े सिख आ ना वो हुंदे ने प्रभु परमात्मा नूं प्यारे। उन्हां नूं भाई किसी तरह का कोई भी जमदूत आ जिहड़ा वो कुछ कह ही नहीं सकदा गा, क्योंकि उन्हां कोले सियाणप, उन्हां कोले जीवन दा जिहड़ा मनोरथ आ, उचेरे जीवन दा, आदर्श जीवन दा, सोहणे जीवन दा, उन्हां नूं भाव किसी भी तरह की हानि नहीं पहुंचाउण दिंदा गा। इसे करके सतगुरु पातशाह जी कहंदे तू भी भाई सतवादी बन, अपनी जिंदगी च बखवादी जां नशेवादी जां बेलड़वादी ना बन।
जे बनना तो सतवादी बन, सच नाल जुड़ के अपनी जिंदगी जियो। फिर अगे पातशाह जी कहते ने यही ही तेरी जिंदगी की सब तो वड्डी जुगत है। जुगत तो भाव तरीका। गुरु साहब जी कहते जी जुगत बस प्रभ कह, जो कह सो करना। हुण मेरी जुगती किहड़ी आ, जो मैनू गुरु उपदेश दिंदा है उहदे मुताबक मैं अपनी जिंदगी जिउंदा हां। मेरी आही ही सब तो वड्डी जुगती है, मेरा तरीका है। हुण आपां बीबी रजनी दी गल सुनी आ, भाव उहने किहड़ा तरीका बनाया, विआह हो गया नकम्मे ना होया ना, कोई गल नहीं, वाहिगुरू भली करेगा, भरोसा ना। तरीका किहड़ा अपनाया, सब तो पहला दरबार साहब, बस आ तरीका गा। हुण अपना की तरीका गा वो आपां वेख सकदे आ। सब तो पहला गुरु कोले गई है ना, ते गुरु ने ऐसी अकल दिती, ऐसी सोझी दिती, उथों दोवें जणियां नूं इन्ना सोहना जीवन बख्शिश कर दिता, आउण वाले टाइम दे विच सुरखरू हो गई। ते अज साडी तमन्ना कित्थे खड़ी आ, साडा जीवन खड़ा गा मनुख ते। देखो आपां गुरु की गल आ जिहड़ी ना गुरबाणी मुताबक ही करनी है। बड़ियां नूं मतलब भुलेखा पै जांदा भी नहीं जी ये गुरबाणी दे विच लिखिया नहीं है, ये उदां ही बोली जांदे आए आ, जो बिल्कुल नहीं। साडी जिहड़ी टेक आ वो रुकी हुई आ मनुख ते। चलो एक तां भला मानस मनुख हुंदा, वो परमात्मा सबब बनाउंदा भी वो मनुख दे विच गुरु ते टेक रखण दा, अगले ते यकीन है ना, भरोसा उहनूं परमात्मा ते, वखरी गल आ। ते असीं ओ मनुख ते टेक रखी बैठे हैं जिहड़े मनुख नूं खुद नूं परमात्मा ते टेक है नहीं गी। इन्ना ही फर्क है ना। हुण मन लवो दो उदाहरणां इत्थे। गुरु साहब कहते परमात्मा ते टेक रख, वो गल नूं आपां थोड़ा जिहा पासे कर लो। अगली गल की है भी असीं टेक रख लई बंदे ते गुरु साहब कहते कमलिया बंदे दी टेक आ ना जिहड़ी तां बिरथी आ, बेअर्थ आ गई, किसी लेखे च नहीं पवेगी। चलो गुरु साहब कहते जे बंदे दी टेक रखनी आ तां किसी चंगे ते रख ला, चंगे बंदे ते रख ला ना। जे टेक ही रखनी आ वधिया बंदे ते टेक रख, फिर इह ते ना रख। हुण इत्थे दो मूरतां बनाउणीआं, आपां सोचांगे भी बंदे च भी चंगा मंदा पक्ष हुंदा। गुरु साहब कहंदे हां हुंदा पुੱਤ। एक तां परमात्मा ते देखो हुण 10वें पातशाह कौन आ, बंदा ही आ, सानू सारिआं नूं टेक आ उते। औरंगजेब बंदा ही आ, सानू सारिआं नूं ते टेक नहीं है। हालांकि जे आपां दुनियावी तल ते वेखीए ना, औरंगजेब दी प्रॉपर्टी दशमेश पिता नूं वध हो सकदी है शरीरक तल ते, पर नहीं साडी टेक पूरी दुनिया दी टेक गुरु ते आ। हन दोनी बंदे। हुण मान लो भी एक किसान आ, दोने बंदियां दी उदाहरणां आपां लैणीआं भी बंदे ते टेक रख, रख चज दे ते नकम्मे ते ना टेक रख, है ना। साडी टेक कित्थे आ, नकम्मे ते। जिहदे आपदे डैणे गोपाल आ, साडी टेक उते आ। जिहड़ा आप दुआनी मंगदा फिरदा ना, असीं ओहदे ते टेक रखी बैठे। सोच के देखो। हुण इत्थे किसान दी उदाहरण, एक किसान ओह आ जिहदी फसल वेखण नूं पूरी जम च आ, मतलब जिहनूं आपां कह दईए वधिया फसल आ, ते किसान नूं उस फसल ते बहुत भरोसा भी ऐतकी ना मैं झोने दीआं ट्रालियां भर भर कढूंगा इत्थों। ते एक हुण झोना ओह आ, फसल ओह आ जिहड़ी बिल्कुल पतली आ गई, जम्मी नहीं है, नकम्मी आ। ते जे कोई हुण ओह ते टेक रखे, है दोनों पासे फसल, इधर भी फसल आ इधर भी फसल आ, पर जिहड़ी जम्मी फसल आ गई ओह ते टेक यकीनन आ, ते जिहड़ी नकम्मी फसल आ ओह ते टेक रखी नहीं जा सकदी। कि रखी जा सकदी आ? सोच के देखो, रखी नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि जिहड़ी नकम्मी पहली नकम्मी फसल आ ओह साडे जीवन नूं संतुष्ट किवें करूगी? सोचो भला। जिहड़ा पहली नकम्मा किन्ना क टाइम मतलब साडे जीवन नूं संतुष्ट कर सकदा? सोच के देखो। ते जिहड़ी फसल पहले जम्मी भी आ ओही फसल साडे जीवन दे विच भला कर सकदी आ। गुरु साहब की कहंदे ने हुण मनुख की टेक बृथी सब जान। देखो सुखमनी साहब तुसीं सारी पढ़दे हो ना, मनुख की टेक बंदे दी टेक की आ बृथी सब जान।
की है बेअर्था बंदे दी टेक किते रखनी है, परमेश्वर परमात्मा ते रख। ओ परमात्मा ते टेक रखेगा ना, फिर बीबी रजनी वांगू तेरा घर वज जाना, ऐसी गल नहीं भी नहीं वजेगा। बीबी रजनी दे बाप ने कमी नहीं छड्डी कि अपनी धी नूं खत्म करन दी, अपनी धी नूं खत्म करन दी उहदे बाप ने कोई कच नहीं छड्डियागा। पर पहला निशाना बीबी का की सीगा, गुरु नूं मिलना। बस क्यों गुरु ते टेक आ ना, गुरु नूं मिलना, दरबार साहिब जाना, पहला निशाना आ। दूजा कम बाद च आगा, जे पहला निशाना जीवन दा आगा तो फिर बीबी रजनी ते किरपा भी हुई है, ऐसी गल नहीं भी किरपा नहीं हुई। वो तुसी सारे आपां सारे इतिहास पढ़ते सुनते हैं। ताइयों की कहा गुरु साहब ने, मेन जिंदगी दे विच तेरे कोले आही जुगती होनी चाहिए, होर दूजी जुगती कम नहीं करती। जी जुगत बस प्रभ कै, जो कहे सो करना, जो गुरु दा हुक्म आ उवें होना। फिर अगे पातशाह कहते ने, भय प्रसन्न गोपाल राय, भौ किछ नहीं करना। मेरा मालक फिर जदों ओहदे तो जुगती लेके आपां जिंदगी दी कदम पुट्टांगे ना, ते ओह खुश हुंदा हैगा। भाव उहदी रजा विच सब कुछ है ना, हवा भी उहदी रजा चा, धुप छां उहदी रजा चा, सूरज चंद उहदी रजा चा, दिन रात उहदी रजा चा, जो भी कुछ आपां कुदरती करिश्मे वेखदे आ सब कुछ उहदी रजा चा। एक बंदा जिहड़ा उहदी रजा दे विचों बाहर है, हाँ जो गुरु दा सिख आ प्यारा गा उहदी रजा च तुरदा गा। फिर पातशाह जी कहते ने, करण कारण समर्थ है, तिस बिन नहीं होर भावना किया। भी मेरे मालक जीओ, तेरे तो बिना मेरा जिंदगी का कोई होर आसरा नहीं है। तू ही है जो करण कारण समर्थ है, तू ही है, होर नहीं कोई है। तेरे कोले सारी ताकत है। नानक प्रभ शरणागति साचा मन जोर। गुरु साहब जी कहते मेरा जोर एक परमात्मा ते चल सकदा, होर नहीं किसी ते चलदा। वाकई लास्ट वाली गल सच्ची कही है पंजवें पातशाह ने, क्यों साडा जोर किसे ते कोई नहीं चलदा गा, पर जे साडा जोर है गरीब दा भी अमीर दा भी, वो परमेश्वर परमात्मा दी आ। एक उसे धी है ना, आप उसे नूं कह सकते हैं, प्रभु परमात्मा तेरे तक ही साडी पहुंच आ, असीं तैनूं ही अपना दुख जां सुख दस सकते हैं, होर नहीं किसी नूं दस सकते। तेरे तक साडी पहुंच आ। बंदे दी बंदा थोड़ी अमीर गल सुनूगा। हुण किसानां दी गल किन्नी क सुन ली अमीरां ने। अच्छा लास्ट ते कित्थे गल खड़ जांदी आ भी हुण तां भाई परमात्मा दे हत्थ 'च ही आ काम। देखो परमात्मा इन्ना अमीर आ, जिहदे कोले पहलां भी आउणा सी आए नहीं, पर लास्ट ते भी कहना पै गया रब दे हत्थ 'च ही काम आ। वो चाहे तां चंगा कर सकदा, चाहे माड़ा कर सकदा, जो उहनूं भाउंदा उवें होवेगा। सो इत्थों तक विचार समाप्त है। अज दी विचार दा छिट्टा भी बंदे ते टेक नहीं, एक परमात्मा ते टेक रख। मानुख की टेक बृथी सब जान, देवन को एक भगवान। जिसकै दिए रह अगाए, वोहर न तृष्णा लग आए। मारै राखै एको आप, मानुख कै किछ नाही हाथ। ये सुखमनी साहिब दा वाक तुसीं रोजाना पढ़दे होवोगे। धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।